Einstein coefficients. Einstein calculated the probability for absorption transition and the emission transition, and by comparing between the two he came to know, he predict the possibility of amplification of the radiation in a laser. So if B12 is the probability rate of occurrence of absorption transition from level E1 to level E2. E1 लेवल से E2 का जो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है उसके लिए सिंबल क्या ले रहे हैं, B12. दिस इज द कोफिशिएंट फॉर प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ अकरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन. Then the probability of occurrence, or we can say the number of absorption transition per unit time per unit volume, number of absorption transition per unit time per unit volume. नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, एंड विच आर इक्वल टू द n1 number of atoms absorb the radiation in the ground state and goes to the hard state. B12 is the probability of occurrence of the absorption transition from level 1 to 2, and this absorption is possible because of this energy density u nu. The energy density is u nu is defined as the u nu is basically the u nu d nu is the radiation energy. जो भी रेडिएशन हम पंपिंग रेडिएशन ले रहे हैं, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो भी हमारे पास एक्टिव मीडियम का वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल न्यू एंड न्यू प्लस 0. एक स्मॉल इंटरवल हमने कंसीडर किया है, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू एनर्जी डेंसिटी radiation energy per unit volume in the frequency interval nu and nu plus d nu. Now if this is the absorption transition per unit volume, then what will be the emission transition? So if let us consider B21 is emission transition from energy level E2 to E1, then the number of emission transition per unit time per unit volume is equal to N2 B21 u nu. These are the number of emission transition per unit time per unit volume, because it is by emitting the radiation, so it is also known as the stimulated emission. ये प्रोसेस क्या है जिसमें कि एक्साइटेड स्टेट में N2 नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे हैं, दे आर एमिटिंग देयर रेडिएशंस विद द incident radiation in phase N2 B21 u. The number of emission transition per unit volume per unit time. Now the number of spontaneous emission transition हम लिखेंगे, तो number of spontaneous
emission transition, नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन हमारे पास क्या होगा, दैट इज A21N2, हमने यहाँ सिंबल लिया है A फॉर द नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम, दिस इज पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली एमिटेड होकर लेवल, हमारे जो ग्राउंड स्टेट लेवल है उसमें हमें मिल रहे हैं, दैट इज A21N2। सो नाउ इफ and also these spontaneous probability, that is the probability constant A21, depends on the energy of this state 2 and state 1, and this is known as the Einstein coefficient for spontaneous emission. Now if we calculate, that is the number of transition to the ground state at thermal equilibrium will equal to the number of atoms in the excited state. So the absorption rate is N1 B12 U nu shall be equal to B21 U nu plus A21 N2 at थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम पर हमें ये कंडीशन मिलेगी, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दिस कंडीशन इज दैट वी कैन नाउ सॉल्विंग दिस इक्वेशन फॉर, हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम यून्यू की टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो N1 B12 माइनस N2 B21 यून्यू को आप एनर्जी डेंसिटी को कॉमन ले लीजिए, एंड A21 N2। अब हम यून्यू लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, and we get A21 N2 divided by N1 B12 minus N2 B21, और इसको हम सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, इफ़ वी डिवाइड दिस इक्वेशन विद द कोफिशिएंट B21, हम B21 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, और हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, विद द N2। So we will divide this equation with B21. After dividing this equation, so with B21 we get here this, and also this is the required relation for energy density. Now according to Maxwell distribution, हम अगर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टेम्परेचर टी ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स लें जो कि अमंग डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स एट टेम्परेचर टी, तो वो बोल्ट्जमैन के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, N2 by N1 इज इक्वल टू E एनर्जी, corresponding energy for this level, and energy of this level. This is the Maxwell-Boltzmann distribution. Maxwell-Boltzmann distribution. When there is a state of thermal equilibrium between these two energy states. We will arrange this value also
if we write it for the n1 by n2 we will get E, हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एच न्यू बाई के टी होगा, क्योंकि हम जब माइनस करेंगे हमने यहाँ पर E2 माइनस E1 को एच न्यू पुट कर दिया है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी फॉर नंबर ऑफ एटम्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इस इक्वेशन को, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, A21 बाई B21 एंड 1 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो वो है हमारे पास E एच न्यू बाई के टी B12 B21 माइनस 1। ये हमारे पास आइंस्टाइन एनर्जी डेंसिटी के लिए रिलेशन आ गया। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ आइंस्टाइन कंपेयर दिस with the Planck's radiation formula. So we will compare this equation number 3 with Planck's radiation formula. By Planck's radiation formula, energy density is equal to 8 pi h nu cube divided by c cube 1 by E h nu upon kt minus 1. Equation number 4. If we compare the Einstein energy density with the Planck's radiation energy density, then we get A21 by B21 is equal to 8 pi h nu cube by c cube। इस टर्म को हमने इस टर्म से कंपेयर कर लिया है। तो दिस इज 8 पाई एच न्यू क्यूब एंड डिवाइडेड बाई सी क्यूब, एंड अब हम इस टर्म को इस टर्म से कंपेयर करेंगे। देन वी गेट B12 बाई B21 इज इक्वल टू 1। तो ये दो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हमारे पास आ जाते हैं जिससे हम पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन फॉर द लेजिंग एक्शन। तो ये रिजल्ट 1917 में आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किया। आइंस्टाइन प्रेडिक्ट हिज थ्योरी, थ्योरेटिकली उन्होंने स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में बताया था और पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लीफिकेशन के बारे में बताया था। 1917 के बाद 1954 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था लेज़र को बनाने के लिए, 1954 में। सो रिजल्ट जो आइंस्टाइन को मिले, दीज A21 by B21 is 8 pi h nu cube by c cube and B12 by B21 is equal to 1। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दिस इज by B12 कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन is equal to the coefficient of stimulated emission। It means अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल है। मीन्स इफ एनर्जी डेंसिटी इज प्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रेजेंट, if electromagnetic radiation is present then B12 is equal to B21। यही पता लग रहा है हमें अपनी इक्वेशन से। तो इट मीन्स द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू द स्टिमुलेटेड एमिशन रेट। एंड इफ वी लुक एट दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को देखें हम तो रेशो ऑफ स्पॉन्टेनियस emission coefficient to the stimulated emission coefficient varies with frequency nu cube। It means larger the energy difference in between the two states, that is E2 minus E1 is equal to h nu,
अगर ये जो एनर्जी का डिफरेंस है जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन रेट, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी क्यूब के। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर एनर्जी डिफरेंस एच न्यू है और अगर ये एनर्जी डिफरेंस बढ़ता है तो द स्पॉन्टेनियस एमिशन बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्टिमुलेटेड एमिशन। मीन्स अगर दो स्टेट्स जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हैं इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा मिलेगा। तो वी नीड टू मेक a device in which the energy difference between the states, that is ground state and excited states, are less, जिसमें कि less difference हो energy states में। Possibility of amplification. Planck's radiation formula 8 pi h nu cube by c cube 1 by exponential h nu by kt minus 1, and by comparison we get a to 1 by b to 1 as equal to 8 pi h nu cube by c cube. If we put this value of 8 pi h nu cube by c cube is equal to a to 1 by b to 1 in the equation 1, we will get u nu is equal to a to 1 by b to 1 1 pi exponential h nu by k t minus 1. By forming this type of equation, we can find the possibility of amplification. At a given temperature, at any given temperature, हमने कोई ऐसा टेम्परेचर कंसीडर कर लेना है जिस पर एच न्यू की जो वैल्यू है वो इस के टी से बहुत ही कम हो जाए, लेस हो जाए एच न्यू की वैल्यू के टी से। ऐसे टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर एच न्यू बाई के टी बहुत कम है तो इसकी एक्सपेंशन अगर हम चेक करें तो क्या होगी, -1 इज इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू बाई के टी -1, बिकॉज यहाँ जो हायर टर्म्स हैं उनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इफ़ एच न्यू इज लेस देन के टी। तो वी नेगलेक्ट हेयर द हायर टर्म्स। सो आफ्टर डूइंग दिस वी गेट we will find the equation as E by B, E न्यू थोड़ा सा हमने अरेंज कर लिया है, इज इक्वल टू एच न्यू बाई एंड लेस देन 1, और वी कैन से ए इज लेस देन बी ऑफ दिस वैल्यू। तो इस इक्वेशन से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज greater than that of the spontaneous emission. So if temperature is very much large as compared to this value, then the stimulated emissions far exceeds that of spontaneous emission. अगर हमारे पास ये वैल्यू के बी टी लार्ज हो एज कंपेयर टू एच न्यू, इफ एच न्यू इज greater than this value, then this expression will become equal to, तब हम हायर टर्म को नेगलेक्ट नहीं कर सकते इस एक्सपेंशन की। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं देन वी विल गेट 1 प्लस एच न्यू बाई दिस एंड हायर टर्म्स -1, सो वी विल गेट, तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है जो हायर टर्म्स आएंगे ये 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होंगी बिकॉज एच न्यू इज़ ग्रेटर। सो एच न्यू बाई के बी प्लस डैश 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 जो भी हायर टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती चल जाएंगी, ग्रेटर देन 1 होंगी। तो इट मीन्स इन दैट केस
the spontaneous emission will increasing than the stimulated emission. Quantum amplification. What is quantum amplification? When a beam of radiation, let us consider of frequency omega, is entered into a medium whose atoms are already in the excited state and they are emitting out with the emission of the radiation omega in the same direction as the incident radiation, then the stimulating radiation and the incident radiation will have the same phase, same polarization, and this will amplify the output, and this process is known as quantum amplification. Now, in the process of possibility of amplification, if ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड, अगर ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशंस डोमिनेंट होता है एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज. ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज जैसे कि ऑर्डिनरी लाइट बल्ब जो होते हैं दे वर्क एट द ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज. सेकेंड थिंग, at the state of thermal equilibrium के स्टेट पर rate of emission and absorption are equal. Rate of absorption and emission are equal. इस स्टेट को हम थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. और अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन इक्वल होगा, इट मीन्स देयर इज नो पॉपुलेशन इन्वर्जन. पॉपुलेशन इन्वर्जन हमें इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं मिल रहा है. सो दैट्स वाई हेयर द स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डोमिनेंट. और अगर स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेंट होगा तो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस एमिशन गिव्स रेडिएशन इन द रैंडम डायरेक्शन. रेडिएशन को रैंडम डायरेक्शन में एमिट करता है. तो रेडिएशन अगर रैंडम डायरेक्शन में होगी तो देयर विल बी द नॉइज कंपोनेंट इन द आउटपुट रेडिएशन. सो वी कांट गेट द एम्प्लीफाइंग रेडिएशन. हमें एम्प्लीफाइड रेडिएशन नहीं मिलेगी. We cannot get amplified radiation in these two cases. Momentum transfer. The momentum transfer is according to the law of conservation of energy and momentum. When a radiation of energy value h nu incident on an atom in excited state, then atoms gets a recoil momentum because the energy is transferred to the atom. So it gets a recoil momentum corresponding to this energy h cut omega by c, and this momentum is directed along the direction of incident radiation if the atoms are absorbing this. So during absorption the momentum, recoiling momentum
is directed along the direction of incident radiation. And if there is stimulated emission, then this recoiling momentum is directed opposite direction of propagation of incident radiation के opposite direction में होगा. But if this momentum is for the process of spontaneous emission, then in the case of spontaneous emission, the net recoiling momentum will be zero, because spontaneous emission emits the radiations in random directions. So the recoiling moment in opposite directions cancel each other. So in case of spontaneous emission, net momentum will be zero. Recoiling momentum due to incident radiation will be zero. आइंस्टाइन की थ्योरी के दो पॉइंट्स ऐसे थे जो अधूरे रह गए. वी कैन से द इनएडिक्वेट थ्योरी. That is, first is he give the ratio of the quotient A and B but not their values. उसकी थ्योरी में इसकी वैल्यूज़ को वो कैलकुलेट नहीं कर पाया. सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का स्प्रेड हो जाता है when it passing through the medium, and इस स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण शार्पली डिफाइंड लेवल्स आइंस्टाइन नहीं बता पाए. शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल वो नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ दिस स्प्रेड ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो वी गेट अ लाइन विड्थ during we get the amplifying radiation.